on behalf of the children's best interests. Children are the priority. Change is the reality and collaboration is the strategy. This morning, we have all come together to focus and learn about one very important aspect related to children's health: hygiene. Hygiene is an integral part of our daily lives and it must be inculcated in our children from this very young age, and hence comes the importance of dental or oral hygiene. Tooth decay, cavity, gum diseases, orthodontic issues are few very common dental problems that our children suffer with. We are glad to announce that today we have with us Dr. Shivangi Behera, consultant dental surgeon, as our resource person. You would be delighted to know that she is our parent as well as an alumni of our school. We welcome you, ma'am. Dr. Shivangi has done her BDS from Bharati Vidyapith Dental College and Hospital, Pune in 2006, and since then she has been associated with, just a minute. Okay, so now our HM Ms. Kuhu Ganguly is felicitating her with a planter. We are an SDG school, so we follow every SDG goal wholeheartedly. Private hospitals, charitable hospitals and private clinics. She has done a certificate course on cosmetic dentistry from New York Dental University. She, along with her team, have conducted several workshops and dental checkup camps for many schools and corporate setups. Ma'am, it's an honor for us to have you with us today. Now, I would request Dr. Shivangi Behera to please come up to the stage and enrich us on the importance of dental hygiene. Please, ma'am. Thank you, ma'am, for the kind words. Respected teachers and all the lovely parents out here, a very good morning to all of you. So now I hope at least you guys know my name and what work I do. And regarding today's talk, as correctly said, dental hygiene is a very, very important aspect. And as parents, what all we can do to guide our kids for maintaining oral hygiene is something what we all should know about or should be aware of. And that is what today exactly I want to talk about, or rather try sharing whatever little knowledge I have so that I can guide you or educate you all on this aspect. So without further delay, let's begin. This slide I really wanted to put up and I kind of found it yesterday only. Now this reminded me of one of my patients. अभी कुछ ही टाइम पहले एक पेशेंट आई थी हमारे पास, around 7 years old, and her problem was, she was a very chirpy girl. Her problem was, she told me, मैं 5 star नहीं खा पा रही हूँ, मुझे 5 star खाना है. And I was surprised. I said, why do you want to eat 5 star? She said, obviously I like it. And her mother was कि डॉग दांत में दर्द बताती है, खाना नहीं खाती है, पर चॉकलेट जरूर खाना है. So I said, okay, let me have a look. She was a very friendly child, no problems whatsoever. But the moment she sat on the dental chair, she was like, एक मिनट, क्या करने वाले? क्या सुई लगाओगे? I said, no. Who said that? And she was like, Mama. I said, no, I'm not going to do that. I'm just going to check. And she opened her mouth to me, and there were 2-3 cavities. And I asked her, pain hai? She said, nah. I said, okay. She said, okay, मुझे इतना बताओ, आप इसमें क्या डालोगे? क्या करोगे? I said, I'm going to clean them up. और आपको दर्द नहीं होगा, तो मैं इसमें फिलिंग कर दूंगी. First she was like, okay, let's do it. And I told my staff to prepare everything, सब ready करने के लिए, ताकि हम filling का procedure start करें. So the moment I took my instrument to do the filling, she said, wait. And I was like, again? And she was like, what are you going to fill in it? I said, a medicine. कैसी medicine? She said, show me. So my staff showed. We have a protocol of showing the kids हम क्या कर रहे हैं, so that they feel safe कि हाँ चलो मुझे पता है मेरे मुंह में क्या जा रहा है. And she said,
don't you have anything else? I said, no, why? Can you put chocolate in it? And I was like, what? She said, you know, मम्मा खाने नहीं देती, तो चॉकलेट भर दोगे तो मैं हमेशा खा सकती हूँ, वो वहां से सप्लाई आता रहेगा. And I was like, wow, what an amazing thought. I said, don't worry, the next time I get the material ना, I'll ask the fellow to give me chocolate flavor. She said, अच्छा अभी यही है तो कर दो. I said, why you are in a hurry? She said, हाँ मम्मा ने promise किया है डोमिनोज से चोको लावा केक खिलाएंगी. And I was like, wow, very nice. And so when I saw this image, I just got reminded of her, and I so wanted to put up this slide. So on a lighter note, please enjoy this. As you can see here, we are talking about the child's bright, shining smile, a healthy smile. Now, it can be a challenge if your child doesn't brush properly, and that is why oral hygiene or dental hygiene actually comes into play. Now, what is dental hygiene? क्यों है, क्या है dental hygiene? क्यों जरूरी है? What is the importance? Dental hygiene या जैसे हम बोलते हैं हमारे मुंह की सफाई is important because it includes all the processes, all the steps जो भी हम कर सकते हैं अपने मुंह को clean, healthy, infection free रखने के लिए. Now, why is it important? Actually, awareness regarding oral hygiene, it has significantly increased. But in now times, you know, our modern dietary lifestyle, जिस तरह का खाना हम खाते हैं या हमारे बच्चे खाते हैं, it is imposing a greater risk towards our oral health, हमारे और हमारे बच्चों की. So why is it important to maintain the dental hygiene or to guide our kids कि नहीं भाई मुंह साफ रखना जरूरी है, ब्रश रखना जरूरी है? क्यों, किस लिए? Very simple. The more you maintain it, you are prevented by these dental infections, tooth decay. और दांत खराब नहीं होंगे तो दांतों में दर्द नहीं होगा, दांतों में दर्द नहीं होगा तो बच्चा खाना अच्छा खा पाएगा, अच्छे से च्यू करेगा, वो खाना उसके शरीर में अच्छे से लगेगा. Now the child will eventually have a healthy lifestyle, a healthy body and an active mind. वो हर चीज में इंटरेस्ट लेगा, पढ़ाई हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो. There are many things for the child to do. तो इन सब चीजों के लिए एक हेल्दी माइंड, एक हेल्दी बॉडी की बहुत जरूरत होती है. So this will actually help the child. And that is why maintaining oral hygiene is important. And secondly, very important for the parents, it saves costly dental treatment. Now, सबको ये लगता है dental treatment बहुत expensive है, very expensive. Okay, to an extent I agree, it is expensive. But what I actually feel, dental treatment is not expensive, but the neglect is definitely expensive. आप जितना neglect करेंगे, उतना ही चीजें खराब होती हैं और उतना ही dental treatment expensive होता जाता है. So please, just a request, do not neglect the dental hygiene of your and of your kids. Now, what are the basic steps in maintaining oral hygiene or maintaining dental hygiene? Very simple. There is no rocket science in it. Now, the first thing is brushing your teeth. Now, brushing is a very general term, a very common term. It's like a household name, brush करना है. लेकिन the question arises, क्यों करना है? ब्रश करने से क्या होता है? किस लिए ब्रश करना है? ब्रश कितनी बार करना है? कैसे करना है? कितने टाइम तक करना है? एंड इम्पोर्टेंटली कौन सा ब्रश इस्तेमाल करना है, कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना है, और क्यों उस टूथपेस्ट को इस्तेमाल करना है, क्यों हम डिफरेंट टूथपेस्ट इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं पेरेंट्स को. फर्स्टली, ब्रशिंग क्यों करना है? जब भी हम कुछ खाते हैं या कुछ भी पीते हैं, हम हमारे बच्चे, द टीथ हैव अ टेंडेंसी, जैसे हमने कुछ खाया या हमने पिया, इवन इफ इट इज मिल्क, एक पतली सफेद कलर की फिल्म, अ वाइट थिन वाइट फिल्म इज फॉर्म्ड ऑन द टीथ. एक परत सी बन जाती है दांतों पे, जिसको प्लाक बोलते हैं. आपने ये वर्ड सुना भी होगा, बहुत टीवी एडवर्टाइजमेंट्स में आता है ये वर्ड. अब ये प्लाक जो होता है, इसमें होता क्या है? इसमें बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया इवेंचुअली वहां पे पार्टी करते हैं दांतों पे, और उस पार्टी से होता है टूथ डीके, which eventually leads to dental pain या toothache. Brushing basically it removes that film for that very moment. It is not like कि एक बार ब्रश कर लिया तो फिल्म हट गई, जैसे ही बच्चा कुछ खाएगा वो फिल्म वापस बनती है. But at least for that time or for a period of time that film is removed. और उस फिल्म को बनने में फिर टाइम भी लगता है, इसलिए हम आपको बार बार ब्रश करने के लिए बोलते हैं. Every time you brush, that film is removed. Every time you eat, it comes back again. इसलिए बोला जाता है 2 बार ब्रश करें, ताकि जितना टाइम मुंह बंद रह रहा है उस
को बनने का ज़्यादा टाइम ना मिले। अब ब्रश कितनी देर किया जाए? करने के लिए तो हम कुछ सेकेंड्स भी कर सकते हैं, करने के लिए 1 मिनट, 5 मिनट। आई हैव सीन, आई हैव एक्चुअली टॉक टू पेरेंट्स जो बोलते हैं हम तो 3-3, 4-4 मिनट तक बच्चे का करते रहते हैं, बट बच्चे का मुंह तो वैसे ही है। फिर ऐसा क्यों है? अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन, ब्रशिंग फॉर 2 मिनट्स, बस 2 मिनट, अपने मैगी नूडल्स जैसा 2 मिनट ब्रश करने का इज इनफ, ना उससे ज्यादा की जरूरत है और उससे कम का तो ऑब्वियसली बेनिफिशियल नहीं होगा। आप 2 मिनट ब्रश करिए, मेक श्योर आपका ब्रश जो है वो टूथ सरफेस के 45 डिग्रीज एंगल पे रहता है, और देन यू ब्रश। नाउ ब्रशिंग हैज टू बी डन इन अ मसाजिंग मोशन। वो कपड़े का ब्रश नहीं है जो कि हम कपड़े को घिस रहे हैं, वो दांत है, गम्स है। दांत अकेला नहीं होता, उसके आसपास गम्स है, टंग है, हमारा चीक है। तो एवरीथिंग हैज टू बी डन जेंटली एंड इन अ प्रॉपर मोशन। आप ब्रश को राउंड मोशन में, मसाजिंग मोशन में चलाइए एंड मेक श्योर एवरी सरफेस ऑफ द टूथ, इनसाइड आउटसाइड, दांतों के बीच में ब्रश जा रहा है, एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द माउथ। बहुत जरूरी है कि दांत के सारे सरफेसेस साफ हों। आइडियली होता क्या है, आगे से कर दिया, चलो ये जो अंदर की साइड आप बच्चे को करा रहे हैं अगर ब्रश, इफ यू आर मेकिंग द चाइल्ड डू, बच्चे को गैग आता है या वॉमिट आता है, सो मेक श्योर यू गोइंग वेरी gently into that zone, but cleaning of that area is very important for adults and for kids as well. Now after brushing, what comes next? It's the cleaning of the tongue. Tongue बहुत जरूरी है क्लीन होना। जैसे कि मैंने कहा हम खाना खाते हैं और दांतों पे एक फिल्म बन जाती है, वैसे ही एक लेयर हमारी टंग पे भी बनती है। Now that layer is like a fluff. उसको रिमूव करना बहुत जरूरी है, वरना that will lead to bad breath। और फिर टंग पे भी फंगल इन्फेक्शन होने का डर रहता है, इसलिए व्हेन यू ब्रश द टीथ, क्लीनिंग ऑफ द टंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड। नाउ आफ्टर क्लीनिंग ऑफ द टंग कम्स द रिंजिंग पार्ट। ब्रश करने के बाद तो कुल्ला करना ही है, वो सबको पता है, बट कुल्ला करना या रिंस करना एक्चुअली क्यों इम्पोर्टेंट है? व्हाई? बिकॉज जब भी आप कुछ खाते हैं, सपोज आपने कुछ भी खाया, चॉकलेट खाया, खाना खाया, आप अगर रिंस कर देते हो, यूजुअली व्हाट हैपेंस, जो बेसिक मेजर बल्क लगा हुआ है मुंह के अंदर खाने का, इट गेट्स वॉश्ड आउट। हर बार ब्रश करना पॉसिबल नहीं होता। आप बाहर हो किसी मूवी के लिए, बच्चे को पिकनिक पे लेकर गए, वहां उसका ब्रश तो लेके नहीं जा सकते, राइट? तो रिंस हम बच्चे को करा सकते हैं। वी जस्ट नीड टू ट्रेन द चाइल्ड कि बेटा, और उसको समझाने की जरूरत है कि बेटा रिंस करना जरूरी है। जस्ट टेक द वाटर इन योर माउथ, मूव इट अराउंड नाइसली एंड जस्ट पुट इट आउट। एटलीस्ट हाफ ऑफ द जॉब इज डन। कुछ टाइम के लिए हमने दांतों को बचाया, एंड वंस द चाइल्ड इज बैक होम, आप उसकी ब्रशिंग कराइए, गुड टू गो। The next is proper diet. About this I would be talking in my next slide. Flossing is important. If your child is old enough to understand how to hold the floss, how to move it between the teeth, कैसे चलाना है, अगर बच्चा समझ सकता है, it is good. Otherwise, brushing and rinsing is enough till an appropriate age. जब और उसके बाद जब बच्चा समझ जाए कि हाँ ऐसे करना है, फ्लॉस हम सिखा सकते हैं बच्चे को, तब आप बच्चे को फ्लॉसिंग कराना शुरू कर सकते हैं। And next is regular dental checkup, very important. But this is something जो हम बहुत ज़्यादा neglect करते हैं. It's not only मतलब I'm talking about you people, मेरे घर में भी होता है ये चीज़। If obviously I'm a dentist, I'm more concerned अपने बच्चों के लिए, नहीं भाई उनके दांत खराब ना हो या whatever it is. But you know my parents, now अब वो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो बोलते हैं हमने तुमको भी तो पाला है, क्या ज़रूरत है, ठीक हो जाएगा, दर्द भी तो है, ठीक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जादू तो है नहीं, ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना जरूरी है। द रीजन इज, डेंटिस्ट आपको गाइड कर देंगे कि आप घर पे अगर बच्चा डेंटल क्लिनिक नहीं आना चाहता या आपके पास टाइम नहीं है इतनी बार लेकर आने का, द डेंटिस्ट इज गोइंग टू गाइड यू विद अ फ्यू स्टेप्स व्हिच यू कैन डू एट होम। आप घर पे वो स्टेप्स को फॉलो करिए, एटलीस्ट उसका मेजर हाइजीन मेंटेन होना चाहिए। एक बार वो हो गया, छोटी मोटी कैविटीज वी कैन डील विद दैट, but yes, it is important. And when to start the dental visit? What I recommend is, जब बच्चे के पहले 2 दांत, the 2 baby teeth when they come, or before the first birthday, it is very important. Just make a general dental visit. Dentist ने कुछ नहीं करना है, बस मुंह में देखेंगे, मुंह में कुछ है ही नहीं. He'll just check the gums, the oral cavity, दोनों दांत, बच्चे के eating habits कैसे हैं, क्या हैं, he'll ask you. And once everything is told to the dentist can tell you a few other steps as well. Now, nutrition and oral health, खाना और सेहत, ये दोनों चीजें साथ चलती हैं।
अच्छा न्यूट्रिशन होगा तो अच्छा ओरल हेल्थ होगा, अच्छा ओरल हेल्थ होगा तो बच्चा अच्छा खाना खाएगा, अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, सेहत अच्छी होगी, शरीर अच्छा बनेगा, दिमाग तेज दौड़ेगा। पढ़ाई बहुत है, कंपटीशन बहुत है, अब दांत का दर्द लेके अगर बैठे रहेंगे फिर तो सारा टाइम ही वेस्ट हो जाना है और उस वेस्टेड टाइम को वापस नहीं लाया जा सकता। नाउ देयर आर सर्टेन फूड आइटम्स जो कि बहुत जरूरी हैं हमारे दांतों के लिए। एज यू कैन सी हियर, व्हाट आई फील जो सबसे ज्यादा जरूरी है आर द नट्स एंड सीड्स, और जो हम फ्रूट्स खाते हैं, द हार्ड फ्रूट्स। हार्ड फ्रूट्स क्यों जरूरी होते हैं, या जो नट्स होते हैं वो क्यों जरूरी होते हैं? दे हेल्प इन स्टिमुलेटिंग द गम्स, हमारे मसूड़ों की मालिश करते हैं। ये किस समय जरूरी होता है? जब बच्चे के नए दांत आ रहे होते हैं, भले ही वो बेबी टूथ हो या परमानेंट टूथ हो, जब वो दांत आ रहे होते हैं तब आपने देखा होगा बच्चा मुंह में बार बार उंगली डालता है। कोई भी चीज मिले मुंह में डालना है, फिंगर हो, कोई भी चीज हो, पेन पेंसिल जो मिल जाए उसको डालना है। वो इरिटेटेड रहता है, बच्चा क्रैंकी होता है, वॉमिटिंग, फीवर सब आता है उसको। दैट इज बिकॉज दांत निकलने की कोशिश में है और उस कोशिश में मसूड़ों में इचिंग होती है या खुजली सी मचती है, बच्चे को पेन होता है। फ्रूट्स या फिर आपके जो आपको डॉक्टर बोलता है टीथर देने के लिए, वो एक टॉय होता है जिससे बच्चा बार बार चबाता रहता है और गम्स की मालिश होती रहती है। वैसे ही फ्रूट्स होते हैं, एप्पल हो गया, गुआवा हो गया, अमरूद हो गया, ये सारे जो फ्रूट्स होते हैं बच्चा जब काटता है या दबाने की कोशिश करता है उससे हमारे मसूड़ों को मालिश मिलती है और जितनी मालिश मिलेगी उतनी जल्दी दांत आते हैं एंड बच्चा सारे सिम्टम्स से फ्री हो जाता है। और द फूड्स विच डैमेज द टीथ, ऑब्वियसली बात है, ये सबको पता है, शुगरी फूड्स हो, चॉकलेट्स हो, कैंडीज हो, प्लस आपके जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं या एक्सेसिव शुगरी ड्रिंक्स, जूस, मिल्क शेक, आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपके बर्गर, पिज्जा, ये स्टिकी फूड जैसे फ्रेंच फ्राइज हैं, पोटैटो चिप्स, वेरी बिग कल्प्रिट्स, हम बंद कभी नहीं कर सकते। हम घर पे बंद कर देंगे, बच्चा बाहर खा लेगा, बट इट इज ऑलवेज बेटर कि उसको लिमिट में दिया जाए। आप लिमिट कैसे कर सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो हफ्ते में या महीने में कोई एक दिन डेजिग्नेट कर दो, बच्चे को उसी दिन मिलेगा और उस दिन वो दिल खोल के खाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अकॉर्डिंगली ब्रशिंग कराकर उस एरिया को क्लीन कर सकते हो। यदि बच्चा बार बार खा रहा है, दैट इज अ प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम क्यों है? जैसे हमारे फ्रेंच फ्राइज होते हैं या पोटैटो चिप्स होते हैं, दे हैव अ टेंडेंसी कि जो हमारे दांतों में, पीछे के दांतों में जो गड्ढे बने होते हैं वो उनमें जाके चिपक जाते हैं। अब जब वो चिपक गए उनको हटाना बहुत मुश्किल है, अनलेस एंड अनटिल बच्चा ब्रश करता है वो नहीं हटते। वंस दे आर स्टक, व्हाट दे डू, वो और खाना अट्रैक्ट करते हैं, तो बच्चा कुछ भी खाता है वो उस पर जाके चिपकता है और जितना चिपकेगा, पार्टी के लिए जितने लोग उतना मजा, अब जितने लोग जितने बैक्टीरिया उतना टिके, दांत खराब, बच्चा परेशान। सो इट इज ऑलवेज गुड, या तो आप लिमिट करें या तो उसका एक हेल्थी ऑल्टरनेटिव ढूंढ लें घर पे, ताकि बच्चे का माइंड जो है वो वहां से शिफ्ट हो जाए। नाउ एज एंड टीथ, एजिंग एंड टीथिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं ये 7 साल का हो गया, दांत नहीं निकले अभी तक, 10 साल का हो गया, ये वाला दांत आ जाना चाहिए था, ये दांत तो कब का निकल गया है, अभी तक नहीं आया। सो there's the age span जिसमें हमारे मिल्क टीथ भी निकलते हैं, जिसमें हमारे परमानेंट टीथ भी निकलते हैं। मिल्क टीथ या बेबी टीथ और इन डेंटल टर्म्स द डेसिडुअस टीथ, जो दूध के दांत हैं, वो यूजुअली 6 महीने से लेकर 3 साल तक की एज तक आते हैं और जो परमानेंट टीथ है हमारे वो यूजुअली 6 से 8 साल के स्पैन में स्टार्ट होते हैं और 13 से 14 साल तक जाते हैं। अब होता क्या है, कभी कभी जैसे ये परमानेंट टीथ जब तब निकलते हैं जब दूध के दांत हिलते हैं, गिरते हैं और फिर वहां परमानेंट टीथ आते हैं। अब समझ लीजिए जैसे बच्चे का दांत हिल रहा है, ना बच्चे ने बताया, आपने ध्यान नहीं दिया, बच्चे ने बताया पर वो डर रहा है, उसको निकलवा नहीं रहा, आपने भी ट्राई किया, नहीं हो रहा, छोड़ दिया उसको। इवेंचुअली वन फाइन डे आपने बच्चे का मुंह खोला और देखा कि पीछे से एक और दांत आ गया और वो जो दांत हिल रहा था वो ज्यों का त्यों पड़ा है वहां पर, नॉट मूविंग एट ऑल। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग, ये जो आगे जो दांत है उसका, ये दूध का दांत था जो हिल रहा था। अब बिकॉज ये निकाला नहीं गया, जो पीछे इसका दांत है वो परमानेंट टूथ है, वो उसका अडल्ट टूथ है। अब उसके आ जाने से इसकी मूवमेंट को रुकावट होगी और ये वहीं का वहीं स्टैटिक हो गया। अब अगर आप ट्राई करो कि नहीं इसको तो निकालना जरूरी है, घर पे आप नहीं निकाल पाओगे क्योंकि वो हिल नहीं रहा। आप ट्राई करोगे तो बच्चा रोएगा,
बच्चा रोएगा और कुछ नहीं कराएगा। सो इन सच केसेस यू नीड टू टेक द चाइल्ड टू द डेंटिस्ट। डेंटिस्ट में कुछ नहीं करना है, इस टूथ को रिमूव कर देंगे और फिर आपके बच्चे को गाइड करते हैं कि बेटा टंग से इस दांत को रोज पुश करो। पुश करने से जो जगह यहाँ क्रिएट होगी इस दांत को निकालने के बाद वो दांत इवेंचुअली अपनी जगह दे देगा। बट कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता, बच्चे नहीं करते, छोटे बच्चे नहीं ध्यान देते और वो जगह वैसी की वैसी रह जाती, दांत पीछे का पीछे रह जाता है। उस केस में फिर फर्दर इंटरवेंशन या फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, उसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगी। Now, since I've discussed about the hygiene, let's discuss about certain dental problems जो बहुत general है, जो बच्चों में आए दिन होता है। Now, it can be cavities, loose tooth, broken tooth, something that are not mentioned here, the knocked out tooth, and irregular placement of teeth. Regarding the solutions, cavities क्या होता है? Cavities सबको पता होगा, वैसे तो कुछ नहीं है, डार्क ब्राउन स्पॉट्स होते हैं हमारे दांतों में, या फिर अगर लेमैन टर्म में तो गड्ढे हो गए, दांतों में कीड़ा लग गया। अब ये कीड़ा लगना भी स्टेजेस में होता है, या तो अर्ली स्टेज हो या मीडियम या फिर लेट स्टेज। अब अर्ली और मीडियम स्टेज में यूजुअली बच्चे को पेन नहीं होता है, सिर्फ एक प्रॉब्लम है, खाना खसता है, खाना खाने में दर्द हो रहा है। करना क्या है? बहुत सिंपल, डेंटिस्ट के पास लेके जाइए, डेंटिस्ट ने चेकअप करना है। इफ द चाइल्ड इज फ्री ऑफ पेन, प्रॉब्लम नहीं है, वी जस्ट क्लीन द कैविटी को क्लीन करते हैं, शेपिंग करते हैं ताकि वो जो फिलिंग हम डालना चाहते हैं उसमें उसको होल्ड कर सके, निकले नहीं बार बार, और फिर उसको बायोकम्पैटिबल मटेरियल से फिल करते हैं। बायोकम्पैटिबल का अर्थ है जो कि हमारे शरीर के साथ, शरीर की बायोलॉजी के साथ फ्रेंडशिप में रहे, हार्मनी में रहे, हमारे दांत को, हमारी बॉडी को हार्म ना करे। कभी कभार क्या होता है, दांत का स्ट्रक्चर इतना ज्यादा टूटा हुआ होता है कि फिलिंग बार बार निकलती है, और यूजुअली होता भी होगा आपके बच्चों के साथ, 10 बार डेंटिस्ट के पास लेके जाना है, वही चीज कर रहे हैं बार बार, लेकिन फिलिंग निकल रही है। उस केसेस में, या फिर जहाँ पे कैविटी बहुत डीप हो जाती है, बच्चे को पेन है, फिलिंग से पहले वी हैव टू डू अनदर ट्रीटमेंट, मे बी इफ यू गाइज नो, रूट कनाल ट्रीटमेंट और एन RCT, एंड इवेंचुअली दांत के ऊपर एक प्रोटेक्शन कवर देना पड़ता है, समथिंग लाइक दिस। दिस इज अ डेंटल कैप। यूजुअली हम बड़ों में लगाते हैं, बच्चों में नहीं लगाया जाता था, लेकिन लगाना चाहिए। और अब पेरेंट्स भी अवेयर हो गए हैं, व्हेन द डॉक्टर एडवाइजेज यू कि भाई फिलिंग नहीं रुक रही है या दांत का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा खराब है, उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, तब हम कैप लगाते हैं। अब आप मुझे ये बोल सकते हैं, अगर नहीं बच रहा है तो निकाल दो ना, रखना क्यों है उसको? नहीं निकाल सकते, हर एक दांत के जाने का एक टाइम होता है, उसी टाइम पे उस दांत को निकालने की जरूरत होती है। अदरवाइज जो ये दूध के दांत होते हैं, ये यूजुअली जगह बनाते हैं हमारे परमानेंट दांतों के लिए। यदि इनको बिफोर टाइम निकाल दिया जाता है तो परमानेंट दांतों की जगह खत्म हो जाती है, और एक बार वो जगह खत्म हो गई, उस जगह को फिर हमें बाद में क्रिएट करना पड़ता है बाय ब्रेसेस। इसलिए हम कोशिश ये करते हैं, जो इनके दूध के दांत हैं, जब तक बचाया जा सके एटलीस्ट उन्हें रोके मुंह के अंदर। एक बार अपना एक वो खत्म कर लेते हैं, अपना लाइफ साइकिल उनका खत्म हो जाता है, या तो वो खुद गिर जाते हैं या तो फिर हमें उन्हें हटाना पड़ता है। इसीलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव टू गेट समथिंग लाइक दिस, व्हिच इज अ डेंटल कैप। आप जो यहाँ देख रहे हो, इट इज अ स्टेनलेस स्टील कैप, ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। आप टूथ कलर्ड कैप्स भी आ गए हैं बच्चों के लिए, व्हिच आर कॉल्ड ज़िरकोनिया क्राउन्स, जो कि सेम काम करते हैं, बस द डिफरेंस इज कि वो दांत के कलर के होते हैं, तो बच्चे को अजीब नहीं लगता, प्लस वो दिखता नहीं है अलग से, और नथिंग एल्स। knocked out tooth is a very important thing which I think आप सबको पता होना चाहिए। बेसिकली जैसे बच्चा खेल रहा है, धक्का मुक्की हो जाती है, बच्चे गिर जाते हैं, मुंह पे चोट लगी। कभी कभी क्या होता है, ये जो चोट लगती है, कहने के लिए कभी कभी कोई इम्पैक्ट नहीं करता, कभी कभी इतना जबरदस्त इम्पैक्ट होता है कि बच्चा गिरा, उठा और उसके मुंह में से खून आ रहा है, और क्या देखा, या तो पूरा का पूरा दांत बाहर आ जाता है, या आधा बाहर आधा अंदर होता है, या फिर बीच में से टूटकर गिर गया होता है। अब क्या किया जाए? बच्चा परेशान है, बच्चा रो भी रहा है, ब्लीडिंग हो रही है वहां पर। सबसे पहले पेरेंट को काम रहने की जरूरत है। मेक द चाइल्ड सिट, उसे शांत कराइए, एक बार चेक कर लीजिए कि और कहीं तो और कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही जगह से ब्लीडिंग हो रही है या फिर कुछ और है। एंड वंस यू सी दैट, उसे पहले एक गिलास पानी पिला दीजिए ताकि वो शांत हो जाए। फिर एक क्लीन कॉटन बॉल लेकर, छोटा सा कॉटन बॉल लेकर, जहां ब्लीडिंग हो रही है
वहीं पर लगाकर बच्चे को बोलिए कि मुंह बंद करके बैठे। हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, प्रेशर से ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, एटलीस्ट तब तक जब तक आप बच्चे को डेंटल क्लिनिक नहीं लेकर गए या डेंटिस्ट के पास नहीं लेकर गए। अब क्या किया जाए, अब उस दांत को ढूंढिए जो गिर गया, उसको आप कहाँ से पकड़ेंगे। यूजुअली जो दांत का सफेद हिस्सा हमारे मुंह में दिखता है, वी नीड टू होल्ड द टूथ फ्रॉम देयर और जेंटली उसको पानी में वॉश करिए। उसको जबरदस्ती घिसना नहीं है बिल्कुल, उसमें उसके फाइबर्स होते हैं, उसके टिश्यूज लगे हुए होते हैं, उनको छेड़ाछाड़ी बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से धोइए। अब क्या किया जाए, अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारा मुंह हमेशा गीला रहता है, वी हैव अ वेट एनवायरनमेंट इन द माउथ, आवर माउथ इज नेवर ड्राई, हमारे मुंह में सलाइवा होता है जो कि हमारे मुंह को गीला रखता है, एंड दैट इज वाई हमारे दांत अंदर सेफ रह पाते हैं। दांत कभी भी ड्राई एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते, वो डिहाइड्रेट हो जाएंगे, वो टूटने लगेंगे। अब उस दांत को कैसे सेफ रखा जाए, अब इसके दो तरीके हैं। आइडियल तरीका तो वो होता है कि हम बच्चे को बोले बेटा उस दांत को अपने मुंह में रखो एक कॉर्नर में दबाकर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, बच्चा घबराया हुआ है, बच्चा डरा हुआ है, हो सकता है वो दांत को स्वॉलो कर ले, दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब इसका सेफर सोल्यूशन क्या है, आप एक छोटा सा बाउल ले लीजिए और अ स्मॉल ग्लास एंड ऐड सम कोल्ड मिल्क, ठंडा दूध उसमें थोड़ा सा डाल दीजिए और उस दांत को जेंटली उसके अंदर डाल दीजिए। द टूथ न मिल्क इज अ वेरी सेफ मीडियम जो कि दांत को डिहाइड्रेट नहीं होने देगा और खराब भी नहीं होने देता, इट इज अ वेरी सेफ मीडियम। नाउ यू मेक अ इमरजेंसी अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट, तुरंत डेंटिस्ट को फोन करिए। ऐसे केसेस में यूजुअली हम बच्चे को तुरंत लेते हैं ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, हमको समय मिले दांत को वापस रीइम्प्लांट करने के लिए या फिर जो भी फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। एंड देन उस बच्चे को कॉटन के साथ मुंह बंद होना चाहिए, बच्चे का बार बार स्पिट नहीं करेगा, जितनी बार बच्चा थूकेगा उतनी बार खून निकलेगा, उसे कहिए बेटा उस थूक को अंदर स्वॉलो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ब्लीडिंग को कंट्रोल रखेगा। और बच्चे को और उस टूथ को स्टिल इन द मिल्क, वो दांत मिल्क में ही रहना चाहिए, उसको निकालना नहीं है। आप दोनों को डेंटिस्ट के पास लेके जाइए सो दैट द डेंटिस्ट कैन डू द फर्दर ट्रीटमेंट। Now talking about irregular arrangement of teeth or irregular placement of teeth, I guess this is a very common problem. अक्सर पेरेंट्स को होता है कि बच्चे के दांत ऐसे क्यों हैं, सामने के दो दांत इतने बड़े क्यों आ रहे हैं, आप ये देखो दो दांत बहुत बाहर आ रहे हैं। दिस हैपन्स जब दांत दूध के दांत से ट्रांजिशन कर रहे होते हैं परमानेंट दांतों की तरफ। यूजुअली बच्चों के जो दांत आते हैं वो 3 फेज में आते हैं, उनकी ट्रांजिशन की 3 स्टेजेस होती हैं। एक होता है मिल्क टीथ या दूध के दांत, एक होता है मिक्स्ड डेंटेशन या मिक्स्ड डेंटेशन ट्रांजिशन, और एक होता है परमानेंट। मिक्स्ड ट्रांजिशन में यूजुअली दूध के दांत और परमानेंट दांत दोनों साथ में होते हैं, कुछ जा रहे हैं कुछ आ रहे हैं, और परमानेंट में हमारे सारे परमानेंट दांत होते हैं जो एक बार गए तो दोबारा नहीं आने वाले, तो उनको बचाना बहुत जरूरी होता है। होता क्या है, जब ट्रांजिशन हो रहा होता है दूध के दांतों से परमानेंट दांतों की तरफ, तब ऐसी इरेगुलर प्लेसमेंट होती है। अब इसका एक दूसरा कारण भी होता है हेरिडिटरी। आपने सुना होगा पेरेंट्स बोलते हैं कि अरे इसके दादाजी के दांत थोड़े ऐसे थे या बुआ के दांत ऐसे थे, वो बच्चे को, या इवन क्लोजेस्ट रिलेशन मम्मी के ऐसे हैं या पापा के ऐसे हैं तो बच्चे के भी दांत ऐसे आते हैं। अब ऐसे केस में क्या किया जाए, ऐसे केसेस में अगर हमें इनको ठीक करना है तो उसके लिए ट्रीटमेंट होता है ब्रेसेस का, या हिंदी में बोलो तो तार लगवानी पड़ती है। अब ब्रेसेस का ट्रीटमेंट सिर्फ इरेगुलर प्लेसमेंट के लिए नहीं होता है। इरेगुलर प्लेसमेंट कभी कभार खराब हैबिट की वजह से भी होता है। हैबिट जैसे कि अंगूठा चूसना, बच्चों की आदत होती है जबान से अपने दांतों को पीछे से धक्का मारते रहते हैं, और या तो मुंह खोलकर सांस लेते हैं। कुछ बच्चों में एडेनॉइड्स होते हैं हमारे, वो बड़े हुए होते हैं, तो उस केसेस में बच्चा अक्सर मुंह बंद करके सांस नहीं ले पाता है, और रात को भी मुंह खोल के सोते हैं। मुंह खोल के सोने से क्या होता है, मुंह हमारा ड्राई होता है और मुंह से सांस लेने की वजह से उनके दांत भी थोड़े बाहर की तरफ आते हैं। अब ऐसे केसेस में क्या किया जाए, ऐसे केसेस में ब्रेसेस देना बहुत जरूरी होता है, अलॉन्ग विथ हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस। उस आदत को तोड़ना पड़ता है ताकि बच्चे का मुंह बंद होना हो शुरू हो, दांत अंदर हो, अलाइनमेंट हो जाए और उसका ओरल हेल्थ थोड़ा बेटर हो जाए। इरेगुलर प्लेसमेंट से क्या, जब दांत आड़े टेढ़े प्लेस्ड है, दांतों के बीच में बहुत गैप है, दांत बाहर है या कम जगह होने की वजह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, सिर्फ दांत हमारे डैमेज नहीं हो रहे हैं, हमारे मसूड़े भी खराब होते हैं क्योंकि ब्रशिंग ठीक नहीं हो पाती बच्चों की। आप कितना भी ट्राई कर लो, जहां दांत इंटरलॉक्ड हो गए उसके बीच में ब्रश जाएगा ही नहीं,
आप कितनी भी कोशिश कर लो, इवेंचुअली क्या होता है, सिर्फ डेंटल अपॉइंटमेंट्स ही बढ़ती जाती है। आए दिन बच्चे के दांत में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, या तो मसूड़ों में से खून निकलता है, या तो बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम होता है, या फिर डेंटल कैविटीज तो होती ही होती है। अब ऐसे केसेस में अर्ली ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी ट्रीटमेंट किया जाएगा उतना बेटर है। ये ट्रीटमेंट बेसिकली हम तभी करते हैं जब बच्चे के परमानेंट दांत आ जाते हैं, जो कि यूजुअली 13 से 14 साल के अंदर हो जाता है। एक बार परमानेंट दांत आ गए, वी नो अब इसके आगे कोई दांत नहीं आने वाला है, तो नाउ वी आर गुड टू गो टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट। और हम जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं उतनी जल्दी फिनिश कर पाते हैं। द रीजन ये है कि 14 से 18 साल मोस्टली हमारे जबड़े की जो हड्डियां होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, तो जितनी हड्डी सॉफ्ट होती है उतना ही अच्छे से हम दांतों को मूवमेंट करा सकते हैं। दांत सीधे कैसे होंगे, उनको मूव करना होगा। अब वो मूव कैसे करेंगे, ऐसे नहीं हो सकता आज इसको मूव किया, कल उसको मूव किया, परसों उसको मूव किया। जो मूवमेंट होती है वो एक साथ होती है, कंट्रोल्ड होती है, और बहुत ही केयरफुल मूवमेंट होती है। बहुत माइनर मूवमेंट्स, माइक्रो मूवमेंट्स की जाती है, वरना बच्चे को पेन होना शुरू हो जाएगा। अब उस मूवमेंट के लिए जितनी जल्दी हम ट्रीटमेंट करते हैं, बच्चा उतनी जल्दी हमारे साथ कोऑपरेट भी करता है, और जितना बच्चा कोऑपरेट करता है ट्रीटमेंट उतना फास्ट होता है। उससे क्या होता है, 13 से 14 से लेकर 18 साल तक जब हम ये ट्रीटमेंट करते हैं, इस दौरान ट्रीटमेंट जो यूजुअली ब्रेसेस का ट्रीटमेंट 1 से 1.5 साल या 2 साल ले जाता है, पर अगर हम 13 से 14 साल दैट्स प्राइम एज बेसिकली, अगर उस समय शुरू करते हैं तो जो ट्रीटमेंट 1.5 साल खींच है वो उसको 8 से 9 महीने में हम कंप्लीट करके बच्चे को फ्री कर सकते हैं। तो पेरेंट खुश, बच्चा खुश, ऑब्वियसली डेंटिस्ट इज वेरी हैप्पी, और प्लस हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया, बच्चे की हैबिट टूट जाती है। उसके बाद यू जस्ट नीड टू मॉनिटर द चाइल्ड, और हर महीने एक डेंटल विजिट उसकी करा दीजिए, सो दैट द डेंटिस्ट कैन सी कि कहीं ऐसा तो नहीं है प्रॉब्लम वापस स्टार्ट हो रही है, या उसके लिए कुछ और बच्चों को कोई अप्लायंस पहनाने की जरूरत है, या कोई ऐसा अप्लायंस जो उसको मॉनिटर करता रहे या उसको याद दिलाता रहे कि मुझे ये हैबिट वापस नहीं शुरू करनी है। हैबिट बनने में टाइम नहीं लगता, हैबिट ब्रेकेज में टाइम लगता है, एंड दैट ऑल्सो नीड्स अ लॉट ऑफ काउंसलिंग फ्रॉम द पेरेंट एंड फ्रॉम द डेंटिस्ट ऑब्वियसली। एक बार जब हैबिट ब्रेक हो जाती है, दांत लाइन में आ जाते हैं, नाउ दैट गिव्स अ वेरी गुड साइकोलॉजिकल एडवांटेज टू द चाइल्ड। बेसिकली जब हम ये ट्रीटमेंट करते हैं, बच्चा टीनेज ग्रुप में घुसने लगता है, 13 to 14, इन बच्चों का आउटलुक अलग होता है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। तो ऑब्वियसली बात है, इफ़ वी आर डूइंग समथिंग जो कि बच्चों को बहुत आगे चलकर उनके हाइजीन, उनके दांतों को, उनके बाइट को, उनके बोन्स को बहुत हेल्प करने वाला है, सो ऑब्वियसली इट इज़ गुड। बच्चे इस ट्रीटमेंट को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। Now regarding the age, as I said, for kids it basically starts from the age of 13 to 14 years, और अब हम एडल्ट से भी करते हैं ये ट्रीटमेंट, विच स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ 18 ईयर्स अप टिल 35। 35 के बाद हम यूजुअली रेकमेंड नहीं करते हैं, बट अगर कराना है पेशेंट को, देन वी हैव अ लिमिटेशन, और हम उस लिमिटेशन के अंदर ही काम कर सकते हैं और उतना मूवमेंट करके ही दे सकते हैं। सो इफ द पेशेंट अग्रीज, वी गो अहेड विद द ट्रीटमेंट। Now if you see something here, this is a clear aligner. This is very much in demand these days, very much trendy. ये है क्या चीज? This is the same thing like braces, but and the treatment modality, the mode of action, everything काम बिल्कुल वैसे ही करता है, but the difference is यहाँ braces है, यहाँ braces नहीं। अब ये clear aligner क्यों है? Clear का मतलब है transparent, आर पार दिखेगा। तो जब इसको पहना जाता है, सामने वाले को ये नहीं पता चलता कि आपने मुंह में कुछ पहना हुआ। काम इसने वही करना है, दांतों को सीधा करना है, अगर स्पेसेस है दांतों के बीच में गैप है उस गैप को बंद करना है, सारा ट्रीटमेंट वही है, बस ब्रेसेस नहीं है। तो कॉस्मेटिकली बहुत ज़्यादा पेशेंट्स इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब जिन लोगों की पब्लिक डीलिंग वाला काम होता है, जैसे HR प्रोफेशनल लोग हैं जिनकी पब्लिक स्पीकिंग बहुत होती है, या हु आर वेरी मच कंसर्न कि नहीं भाई ब्रेसेस दिखते हैं मुंह में, आई एम टॉकिंग अबाउट एडल्ट्स, तो ये उन केसेस में हम बहुत अच्छे से वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और आई गेस सब इसी के लिए आए हैं। नाउ द रोल ऑफ पेरेंट्स, आई गेस द डे अ बेबी इज बॉर्न, पेरेंट्स भी उसी दिन पैदा हो जाते हैं, एंड द रोल ऑफ अ पेरेंट स्टार्ट्स फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट। अब रोल ऑफ अ पेरेंट इन मेंटेनिंग द ओरल हाइजीन ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट फीड ऑफ द बेबी। ऐसा क्यों? जब बच्चा फीड लेता है, क्यों करना है उसका मुंह साफ, किस लिए करना है, ऐसा क्या है? नाउ द बेबी इज ऑब्वियसली फीडिंग फ्रॉम द मदर,
बट जो फीड में जा रहा है दैट इज मिल्क प्लस द न्यूट्रिएंट्स प्लस सर्टन बैक्टीरिया। हमने बच्चे ने फीड लिया, बच्चा सो गया, बच्चा फिर उठा, बच्चा रो रहा है, आपने फीड करा दिया, बच्चा सो गया, बट वो जो दूध मुंह में लगा रह गया एंड ऑन द लिप्स, उसके होंठों पे, उसे क्लीन नहीं किया गया। अब उससे होगा क्या, इवेंचुअली वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर आपको इवेंचुअली बच्चे के मुंह से स्मेल आने लगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि आफ्टर एवरी फीड बेबी का माउथ एक क्लीन गीला कॉटन कपड़ा, एकदम सॉफ्ट कपड़ा होना चाहिए, उसको फिंगर में लपेटिए, आराम से बेबी का मुंह ओपन करिए एंड जेंटली बाइट द माउथ ऑफ द चाइल्ड, वेरी जेंटली, कोई जबरदस्ती नहीं करनी, कुछ नहीं करनी है। टंग को एक बार क्लीन कर दीजिए, उसके गम्स को और उसके चीक्स को, इन दी एंड द लिप्स एज वेल। लिप्स को क्लीन करना बहुत जरूरी है। यदि आप नोटिस करेंगे एक वाइट कलर की लाइन बन जाती है लिप्स पर, विच शुड नॉट बी देयर, तो हमेशा फीड के बाद उसके लिप्स को और उसके मुंह को क्लीन करिए। नाउ द सेकेंड इज ब्रशिंग ट्वाइस अ डे। नाउ व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, क्यों करना है ब्रश, एक बार कर लिया बहुत है, रात को क्यों करना है? देयर इज अ सेइंग, ब्रश एट नाइट यू कीप योर टीथ, ब्रश इन द मॉर्निंग यू कीप योर फ्रेंड्स। रात को ब्रश करोगे दांत तुम्हारे अपने रहेंगे, सुबह ब्रश करोगे तो तुम्हारे दोस्त अपने रहेंगे। सो इट इज अप टू यू एंड अप टू योर किड्स। हम पेरेंट्स को ट्रेन कर सकते हैं, बच्चों को गाइड कर सकते हैं। द रेस्ट ऑफ द मेजर ट्रेनिंग हैपन्स एट होम। अब वो कैसे कर सकते हो आप, बहुत ही इजी स्टेप है, या तो आप बच्चे के सामने ब्रश करें या तो बच्चे के साथ ब्रश करें। आप बच्चे को ब्रश करा रहे हैं जब, सामने मिरर रखिए ताकि बच्चा देखे हो क्या रहा है। अगर बच्चे का बड़ा भाई या बड़ी बहन है, इवन बेटर, सिबलिंग्स में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होती है चीज़ों की। जो बड़ा वाला है अगर वो इतना बड़ा है कि समझ सकता है, अगर आप उसे ब्रशिंग के बारे में समझा रहे हैं तो आप उसे कहिए कि छोटे वाले को साथ में लेके ब्रश करें। उससे होगा क्या, इट बिकम्स अ फन एक्टिविटी, एक चैलेंज हो जाता है। आप बच्चों को थोड़ी सी रिश्वत तो देनी पड़ती है, वरना बच्चे मानते तो है नहीं आसानी से। उनको आप यू कैन गिव देम अ स्नैक लेटर ऑन, और यू कैन से अगर तुमने रात को भी ब्रश किया तो तुम मॉर्निंग में टिफिन में जो तुम्हारा फेवरेट है वो मिलेगा तुमको। एंड इवेंचुअली व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, थोड़ी सी रिश्वत दे रहे हैं और हम एक बच्चों को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं कि बच्चे इस हैबिट में पड़ जाए कि ब्रश करना जरूरी है, ब्रश करना बहुत जरूरी है। नाउ फॉर एग्जाम्पल आई हैव 2 kids, both are girls। जो मेरी 18 month old है, द यंगर वन, शी इज अ बिग टाइम फूडी, शी लव्स फूड। लाइक आप उसको कभी भी उठा के पूछो बेटा खाना है, शी बी yes I want to eat। नाउ इन द मॉर्निंग शी हैज अ टेंडेंसी, वो सुबह उठती द फर्स्ट फूड शी वांट्स टू ईट, उसे केला खाना होता है। बट अब इवेंचुअली उसको ये समझ में आ गया है कि अगर मेरा ब्रश नहीं होगा तो मुझे बनाना नहीं मिलेगा। So even if I am busy, even if I tell her कि अभी रुको, I am coming, so her first action is eat. She wants to brush because she wants to eat the banana which is lying over the fridge. और ये क्यों हुआ? ऐसा नहीं हुआ किसी बात है, I'm a dentist, मैं तो ट्रेन करूंगी अपने बच्चे को। But what I feel, she has learned more from her elder sister. वो बड़ी को देख के ज्यादा समझ गई है कि हाँ मुझे भी ब्रश करना है। अब वो रात को when I make the elder one brush, now she comes and she stands and she looks at her. ये हो क्या है? Whenever I am rinsing, वो आकर मेरी शक्ल देखती है, और whenever the elder one is rinsing after food, she comes and sees, अच्छा ये कुछ हो रहा है। So now when she is drinking water, जब वो पानी पीती है तो वो अपने माउथ को वॉबल करने की कोशिश करती है, ऐसे ऐसे कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ। वो बात और है, पानी बाहर निकल आता है, but yes she is trying. So this is how we just try and instill a positive attitude. वो देख रही है कि दीदी रो नहीं रही है, दीदी को खाने को मिल गया इतना टेस्टी ब्रश करती, तो वो अब थोड़े उस मोड में जा रही है कि हाँ ब्रशिंग करना इम्पोर्टेंट है, या ई करने से उसको उसका बनाना मिल जाएगा। सो आई गेस दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। नाउ द नेक्स्ट इज द डेंटल विजिट। एज आई सेड बिफोर द फर्स्ट बर्थडे, व्हेन द फर्स्ट 2 teeth come out, प्लीज टेक योर चाइल्ड टू द डेंटिस्ट। डेंटिस्ट के पास ले जाइए, डेंटिस्ट एक बार मुंह देख लेगा बच्चे का, आपको बता देगा कैसे कैसे क्या गाइडलाइंस है, कैसे फॉलो करना है। ओके, वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर, जब बच्चे बड़े होते हैं इवेंचुअली बच्चों के मुंह में दांत आते हैं, द क्वेश्चन अराइजेस कौन सा टूथपेस्ट और कौन सा टूथब्रश। अब इंडियन फैमिलीज में एक नॉर्म है, जो टूथपेस्ट बड़ों के लिए आया वो हम बच्चों को भी करा देते हैं। अब वो आपका कोलगेट हो, ओरल बी हो, पेप्सोडेंट हो, एंड आई गेस आजकल वो दंत कांति बहुत ज्यादा फेमस है, दंत कांति और वो वीको वेद शक्ति
जो भी आता है हम बच्चों को भी लाइन में लगा देते हैं, तुम भी इसको कर लो। अब जहाँ तक टूथब्रश की बात है, जो टूथब्रश बड़ों की ले आया, मार्केट में ढूंढते हैं कौन सा छोटा वर्जन है, उठाया और ले आए। नो, दैट इज रॉन्ग। वाई इज देयर दैट वी ऑलवेज से बच्चों के लिए टूथपेस्ट अलग होना चाहिए? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। टूथपेस्ट हैव समथिंग विच इज नोन एज फ्लोराइड। फ्लोराइड एक ऐसी चीज है जो हमारे पीने के पानी में भी होता है। इट्स अ मिनरल विच इज देयर इन वाटर एज वेल। फ्लोराइड की मात्रा हमारे दांतों के लिए बहुत जरूरी है, और ये जो मात्रा होनी चाहिए, दिस हैज टू बी कंट्रोल्ड। बच्चों के टूथपेस्ट में और बड़ों के टूथपेस्ट में ये बहुत अलग होता है। बच्चों के टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा यूजुअली 500 ppm होती है, 500 ppm, और एडल्ट के टूथपेस्ट में इट्स डबल, 1000। तो आप यहीं से अंदाजा लगाइए, अगर आप बड़ों का टूथपेस्ट बच्चों को देंगे तो कितना ज्यादा फ्लोराइड उनके दांतों में जा रहा है। और अगर बच्चा रिंस करना नहीं सीखा है प्रॉपर्ली तो वो उसको स्वॉलो भी कर लेगा। बच्चे अक्सर टूथपेस्ट निगल लेते हैं, उसका टेस्ट उनको अच्छा लेता है, वो लगता है वो निकल जाते हैं, बट दैट इज बैड। एक आध बार चलेगा, बट हमेशा अगर बच्चा इस हैबिट में रहेगा, उसके पेट के लिए भी वो ठीक नहीं है, उसके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी वो ठीक नहीं है। अब आप उससे पूछोगे अगर ज्यादा फ्लोराइड हो भी गया तो क्या फर्क पड़ रहा है, टूथपेस्ट ही तो है, मुंह में घुमाया, थूक दिया। होता क्या है, ये फ्लोराइड जो होता है अगर ज्यादा हो जाता है, इट कॉजेज ब्राउन स्पॉट, ब्राउन कलर के धब्बे बन जाते हैं दांतों पे, जिसको बोला जाता है फ्लोरोसिस। ऐसा नहीं है सिर्फ टूथपेस्ट से होता है, जो पीने का पानी है बहुत सारी जगहों में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, हम हिस्ट्री लेते हैं पहले कि आप कहाँ रहते हैं, वहाँ का पानी कैसा है। अक्सर दांतों पे ब्राउन और व्हाइट कलर के स्पॉट्स बने होते हैं, इनको बोलते हैं फ्लोरोसिस। अब इनसे होता क्या है, इनसे होता ये कि दांतों की स्ट्रेंथ कम होती है, दांत प्रीमैच्योरली टाइम से पहले टूटते हैं, चटक के टूटते हैं, तो ऐसे दांत स्ट्रांग नहीं होते हैं। और ऑब्वियसली बात है, अगर स्टार्टिंग से बच्चों के दांत स्ट्रांग नहीं होंगे देन इज गोना बी अ बिग टाइम प्रॉब्लम। इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट, आप मार्केट में हो या डेंटिस्ट हो, आइडियली तो आपको अपने डेंटिस्ट से ही बात करनी चाहिए। आई ऑलवेज रेकमेंड, जो भी टूथपेस्ट, जो भी टूथब्रश आपको चाहिए या आप चाहते हो, आइडियली मेरा प्रोटोकॉल है, हमारी क्लिनिक में ये प्रोटोकॉल है, मी, माय एसोसिएट, माय स्टाफ, जैसे कोई बच्चा पेशेंट आता है, वी ऑलवेज आस्क कौन सा टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, कौन सा ब्रश यूज कर रहे हैं आप। दे आर एज अप्रोप्रिएट, एज डेजिग्नेटेड टूथपेस्ट एंड टूथब्रशेज अवेलेबल। आप अपने डेंटिस्ट से बात करें, यूजुअली डेंटिस्ट रेकमेंड भी कर देते हैं, अगर उनके पास होता है दे ऑलवेज प्रोवाइड यू, अगर नहीं है तो वो आपको बता भी देंगे कौन से केमिस्ट पे या केमिस्ट पे कौन सा ब्रांड आपको बोलने की जरूरत है। अब ब्रशेस भी एज ग्रुप से आते हैं, जैसे यूजुअली 3 to 10 और 11 to 15 या 11 to 17 वाले एज ग्रुप्स के लिए भी ब्रशेस आने लगे हैं। नाउ दोस ब्रशेस आर इम्पॉर्टेंट, व्हाई? उनके ब्रिसल्स की सॉफ्टनेस अलग होती है, उनके हेड का साइज अलग होता है, ताकि वो एकदम लास्ट तक जाए। जब बच्चे ब्रेसेस पहनते हैं, ये ब्रशेस हम यूज नहीं कर सकते। ब्रेसेस पहनने के बाद बच्चों के लिए जो ब्रश यूज होता है, दोज ब्रशेस आर मोस्टली मेंट फॉर द ब्रेसेस। वो ऑर्थो ब्रश के नाम से आते हैं, वो स्पेशली डेजिग्नेटेड होते हैं ब्रेसेस के लिए। ब्रेसेस लगे हैं तो बच्चे को वही ब्रश यूज करना होगा। वो 360 डिग्री क्लीनिंग करता है, फ्रॉम द ब्रेसेस अराउंड द ब्रेसेस, वरना इवेंचुअली क्या होगा, खाना जमा रहेगा ब्रेसेस पे और कैविटीज भी होगा, गम सूजे हुए रहेंगे, ट्रीटमेंट फेल कर जाता है। जब जैसे कि मैंने बोला 8-9 महीने, वो ट्रीटमेंट 1-1.5 साल ले जाता है, बिकॉज दांत ही क्लीन नहीं है, गम्स हेल्दी नहीं है, हम मूवमेंट कैसे कराएंगे, वेरी डिफिकल्ट। पेरेंट परेशान हो जाता है, पेरेंट बार बार डेंटिस्ट को बोलते हैं क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। अ वेरी बेसिक थिंग, सफाई मेंटेन कर लो, सब हो जाएगा। So that is why there are age and treatment based toothbrushes available and toothpastes available, which is very much important. As I said, juicy, sugary foods, sticky candies, potato chips, they all should be avoided or should be taken in a limit so as to prevent the tooth decay. And last and very important point, जब भी बच्चा घर में परेशान होता है, पेट में दर्द है या दांत में दर्द है, I guess it's a very household name, इंजेक्शन। कुछ भी हो, नहीं मानोगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा देना है। आई डोंट अंडरस्टैंड हम ये वर्ड क्यों यूज करते हैं। बच्चे नो डाउट दे आर सुपर डुपर स्मार्ट दीस डेज, बट कभी कभी बच्चों को आइडिया नहीं होता इन चीज़ों का। इंजेक्शन होता क्या है इन्हें नहीं पता है, हम इनके दिमाग में एक डर बिठाते हैं। ऑब्वियसली हम साम दाम दंड भेद सब ट्राई करें कि बच्चा मान जाए टू गो टू द डेंटिस्ट टू गेट द करेक्शन डन, but I guess there is a way of dealing with that. I always suggest never use the words injection, sui,
सुन करना इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट, इवन इफ यू आर डिस्कसिंग विथ योर पार्टनर कि बच्चे को लेके जाना है, उसका ट्रीटमेंट कराना है, प्लीज अगर बच्चा वहाँ प्रेजेंट है तो प्लीज ये वर्ड यूज ना करें। होता क्या है, बच्चे को एक डर बैठ जाता है कि इंजेक्शन लगेगा, आपको इंजेक्शन दिखता कैसा उसे आइडिया नहीं होगा, अनलेस अनटिल आप वो वैक्सीनेशन पे जा रहे हैं और आपने उसको बताया है कि हाँ ये इंजेक्शन होता है, तब शायद उसे आइडिया होगा। बट आप अगर उसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड देंगे कि बेटा वी आर टेकिंग यू विद द डॉक्टर विल नॉट डू एनीथिंग, द डॉक्टर इज गोइंग टू ओनली चेक अप एंड गिव यू सर्टेन मेडिकेशन, दवाई खाओगे ठीक हो जाएगा, अगर ठीक नहीं होता है तो हम वापस डेंटिस्ट के पास जाएंगे, एक बार दिखा देंगे और जो ट्रीटमेंट होगा डेंटिस्ट कर देंगे। Now, if or in any other positive way which you can deal with the child, आपका बच्चा है, you know it better उसकी साइकोलॉजी की है, but what I feel in this scenario, हम जितना हो सके ऐसे वर्ड्स बच्चे के सामने ना बोलें, उससे होता कुछ नहीं है। पहली बात, बच्चा डेंटल क्लिनिक में पैर ही नहीं रखता, दूसरा अगर रो कर खींच तांच के रख भी लिया, the child is not going to open the mouth, वो मुंह ही नहीं खोलेगा, बात तो करना दूर की बात है। And that way the dentist is not able to gain the trust of the child. जहाँ ट्रस्ट नहीं वहाँ दोस्ती नहीं होगी, ना दोस्ती होगी ना ट्रीटमेंट होगा। So we need to be friends with the child first. उसके बाद ही मैं उसके मुंह के अंदर झांक कर उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। As I said, जो मेरी पेशेंट आई थी जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, she was probably, you know, she might have visited other doctors या other dentists, what I felt. तो she knew कि हाँ ये डेंटल क्लिनिक है, डॉक्टर होगी, वो मेरा दाम देखेगी। बट येस, आई हैव अ प्रोटोकॉल एट माई क्लिनिक, बच्चा डेंटल चेयर पे बैठता है, वी डू नॉट हैव इवन वन इंस्ट्रूमेंट, नॉट इवन अ सिंगल इंस्ट्रूमेंट ऑन द चेयर, कुछ भी नहीं होता है, इट्स अ प्लेन क्लीन चेयर, बच्चा बैठेगा। वी हैव बच्चों के लिए फ्लेवर्ड माउथ वॉशेस, जो बच्चों को स्ट्रॉबेरी हो या मिंट हो, वट एवर द चाइल्ड लाइक, we have that, we give the mouthwash, the child uses that, and the child, we just try to make the child feel safe and comfortable in that environment. No doubt, जैसे पहला इंस्ट्रूमेंट रखते हैं फटाफट से उठकर क्या है ये पूछो, मतलब उनका क्वेश्चन होता है व्हाट इज दिस, इससे क्या करने वाले। सो व्हाट आई डू, आई गिव द इंस्ट्रूमेंट इन द चाइल्ड हैंड, देखो क्या है, इफ इट्स अ मिरर द चाइल्ड कैन सी हिज और हर फेस, उसको पता है अच्छा मिरर है। सो नाउ समवेयर इन द हेड द चाइल्ड नोज कि इससे मेरे को दर्द नहीं होने वाला है। सो इवेंचुअली वट एवर वी आर यूजिंग, हम बच्चे को थोड़ा सा पहले सेफ फील करा दें, उसके बाद ऑब्वियसली बात है जरूरत है तो इंजेक्शन लगाना भी पड़ता है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट उसको लगाने का तरीका अलग है, उसको इंट्रोड्यूस करने का तरीका अलग है। बच्चे को ना डराया जाए वो ज़्यादा बेटर है। जब बच्चा डरता नहीं है, बच्चा ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करता है और ऑब्वियसली बात है पेरेंट्स की प्रॉब्लम हल हो जाती है और हमारा काम हो जाता है। नाउ I would like to share a video with all of you. It's related to a dentist and a patient conversation. So please have a look at it. May I know your name? My name is Vanishri Das. And how old are you? I am 7 years old. So Vanishri, आज आप हमारे क्लिनिक क्यों आए हो? For dental checkup. Okay, तो आपको कहीं दांतों में दर्द है? No pain. Okay, so can I have a look inside your mouth? Yes. Thank you. थैंक यू वानिश्री, आपके दांत तो बहुत अच्छे हैं, बट आपने अपने दांत में यहाँ कुछ लगवाया है। What is that? This is cap. Okay, and when did you get it done? Because I had cavity and the doctor put the cap. तो वानिश्री आप ब्रश नहीं करते थे? पहले मैं एक बार ब्रश करती थी, अब मैं दो बार ब्रश करती हूँ। Okay, and do you rinse after eating chocolates and chips? Yes. Okay, that's very good thing. But वानिश्री, आपको ट्रीटमेंट के टाइम पे या उसके बाद कभी दर्द हुआ? No. Are you good? Okay, very good वानिश्री. So would you like to say a few words to your friends? We should brush twice a day and we should go for dental checking. Thank you. So that's it from my end, and thank you all for listening to me so patiently, and thank you for being such a lovely audience. These are our contact details. Thank you. If anybody wants to visit our clinic, the address is right there, the contact details are right there. Please drop it and we would be very happy to solve your dental issues. And if anybody has any dental
problem. Good and knowledgeable session for us, and you have made us understand in a very simple way. It was just like we are listening to a story, and every knowledge was conveyed as it should be. Thank you so much. Thank you. Now I would request RHM Ms. Kumu Ganguly to deliver the program. Thanks for being here. I understand Saturday है, सबके अपने plans थे, but since you have come here, it really means a lot to us. Thank you. And my heartful gratitude to Dr. Behra, because the way उन्होंने आज explain किया है, काफ़ी कुछ मुझे भी आज पता चला. तो infant mouth cleaning seriously मुझे भी नहीं पता था कि it is important to clean. But I had seen my grandmother doing it to my cousins. So I think what happens these days is कि Indian family system था joint family in my times. आप लोगों में से कई लोग mostly new parents, you might have grown up in a nuclear family. I was brought up in a joint family, and my children were also very privileged to have their grandparents living with them. तो क्या होता था वहाँ पे एक balanced family थी. So you had a generation which had years of experience of bringing up children and other experiences. तो नानी दादी के नुस्खे होते थे, होम रेमेडीज होती थी, और आधा टाइम डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता था, घर पे ही ट्रीटमेंट हो जाती थी. And we used to visit the doctor only in case of severe problems. And then you had the younger generation, the parents and the चाचा चाची, मामा मामी, और वो लोग वो थे जो अपडेटेड थे विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. तो बच्चे को वो भी एक एक्सपीरियंस मिलता था कि प्रोग्रेसिव आउटलुक क्या हो रहा है दुनिया में आज, उसके बारे में. एंड देन द चाइल्ड हैड सिबलिंग्स, अपने कजन्स होते थे, अपने भाई बहन होते थे, और बच्चा खेलता था. और उसमें क्या होता था कि बच्चे को हारने की एक सीख मिलती थी, क्योंकि एज अ पेरेंट हम क्या करते हैं, हम नहीं देख सकते हमारा बच्चा तकलीफ में हो, हमारा बच्चा हार जाए, ये हमसे होता नहीं है, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें. तो हम बच्चे को जीतने देते हैं. पर सिबलिंग्स और भाई बहन जो हैं वो उसी एज ग्रुप के होते हैं, तो एक बहुत नेचुरली कॉम्पिटिटिवनेस आता था, और उससे क्या एक हेल्थी कॉम्पिटिशन समझता था बच्चा. बच्चे को ये समझ आती थी कि आई कैन नॉट बी द मास्टर ऑफ ऑल क्राफ्ट, देयर आर सर्टेन टाइम्स आई विल बी डिफीटेड, और वो बहुत ग्रेसफुली वो डिफीट को लेना आता था उसको. बट ओवर द टाइम देयर वर फ्लिप साइड्स ऑफ द जॉइंट फैमिली ऑल्सो. Or over the time we have come down to nuclear families, both parents working. It's very happy to see both the parents having a thriving career. पर उसमें हमें क्या है, support थोड़ा system कम हो गया है. The lady of the house, she is going out to work, she is cooking. आजकल हमारे fathers भी बहुत घर के कामों में हाथ बटाते हैं. SDG पे उन्होंने खाना बनाया mothers के लिए. We were flooded with pictures, so thank you so much. But एट द एंड ऑफ इट क्या होता है कि सपोर्ट चाहिए होता है. पेरेंटिंग जो है बहुत ट्रिकी है. पेरेंटिंग का जो कॉन्सेप्ट मेरे काम आएगा शायद वो फॉर्मूला आपके लिए नहीं हो, क्योंकि आप एज ए इंसान अलग हैं, आपका बच्चा अलग है, आपका एनवायरनमेंट अलग है, आपकी प्रॉब्लम्स अलग होंगी. तो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, डोंट शाई अवे फ्रॉम टेकिंग सम सपोर्ट. बी वेरी काइंड टू योरसेल्फ. पेरेंटिंग इज वेरी ट्रिकी. कोई किताब नहीं है इसमें, कोई रूल नहीं है कि ये करोगे 2+2 4 ही होगा, ऐसा नहीं है. 2+2 यहाँ पे 5 भी हो सकते हैं, और सारी चीज़ें हमें पता हो ऐसा भी नहीं है. तो जहाँ जिसको जिस चीज़ की सपोर्ट चाहिए हो, फील फ्री टू टेक दैट. इट कैन बी योर फैमिली, इट कैन बी द स्कूल, इट कैन बी एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, बट डोंट शाई अवे, बिकॉज एट द सेंटर ऑफ आवर लाइफ इज दैट चाइल्ड. वो बच्चा है, और फाउंडेशनल स्टेज का बच्चा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द स्टडीज हैव प्रूव्ड मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट हैपेंस टिल एज ऑफ 5 to 6, मैक्सिमम टू 8. और इसी में सिर्फ मेंटल नहीं, फिजिकल डेवलपमेंट भी मैक्सिमाइज होती है. और इस टाइम पे जो मोमेंटम बच्चा गेन करता है वही आगे मेंटेन होता है. अगर इस टाइम पे आपने बच्चे को एक्सपोजर दिया है to learn, to arouse the curiosity of the child, to explore, तो वो हैबिट्स बच्चे में आ जाती हैं, और आगे जाके आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो इम्बाइब हो जाती है. जैसे मैम ने अभी हमें बताया कि आदत डालनी पड़ती है. आदत ओवरनाइट नहीं आती है,
आदत ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आता है. यू हैव टू बी वेरी पेशेंट. एक ही चीज़ को रोज़ उसी टाइम पे करवाइए तो वो आदत बनती है, और एक बार जब आदत बन जाती है तो इट बिकम्स वेरी इजी. तो मैम ने ब्रशिंग के लिए बोला, मैं आपको बोल रही हूँ लाइफ स्किल्स. लाइफ स्किल्स मतलब डेजिग्नेट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे फॉर द चाइल्ड टू सिट. एक डेजिग्नेटेड एरिया पे बैठेगा. पढ़ना है, पढ़ने को इतना डरावना, इतना भयानक मत बनाइए कि बच्चा जी चुराना शुरू करे. पढ़ना है, उसको टाइम देना है, 1 घंटा बैठना है, पर वो रोड लर्निंग ना हो. उसकी एक जगह है, वहाँ बैठता हूँ तो बॉडी भी कंडीशन होती है कि मुझे इस पॉस्चर पे बैठना है और मुझे अभी कुछ करना है. और उसमें आप स्टोरी बुक्स लीजिए, गेम्स लीजिए, एजुकेशनल गेम्स हैं, आपके पास इंटरनेट है, कितना नॉलेज आपके पास है, एजुकेशनल गेम्स हैं, बुक्स हैं. कुछ नहीं तो डिस्कशन करिए, उससे भी माइंड बहुत एनर्जाइज होता है. उसको जो न्यूट्रिशन हम बॉडी को खाने के थ्रू देते हैं, माइंड को वो डिस्कशन के थ्रू मिलता है. बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि स्पून फीडिंग नहीं करनी है. आपको बच्चे को सोचने की शक्ति देनी है. आप हमेशा बच्चे के लिए नहीं सोचेंगे. सो ऑनलाइन क्लासेस में हम जब क्वेश्चन पूछते थे तो मम्मी पापा बहुत ही एंग्शियस होते थे और बच्चे को सोचने से पहले आंसर दे देते थे, प्रॉम्प्ट कर देते थे और सारे करेक्ट आंसर्स आते थे. दैट्स वंडरफुल. हमें भी अच्छा लगता था. बट एक बार पॉज करके सोचिए, जो आपने आंसर दे दिया क्या वो बच्चा रिटेन करेगा? वो नहीं रिटेन करेगा, ब्रेन का काम नहीं आया उसमें. चाइल्ड हैज़ टू थिंक लॉजिकली, प्रोसेस एंड देन आंसर. तो बच्चे को सोचने दीजिए. दे आर वेरी स्मार्ट, दे नो. और यही प्रोसेस यहीं से शुरू होती है जब आगे जाके वो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. तो आप सोचने की वो दीजिए. अभी 2 दिन की ऑनलाइन क्लासेस थी. जो कॉन्सेप्ट्स हमने क्लास में किए उसके आंसर के लिए भी बच्चा पेरेंट की तरफ देख रहा था, क्योंकि वो कंडीशनड है कि जब मम्मी पापा साथ में होंगे तो वो आंसर बता देंगे. जब हम स्कूल में करते हैं तो वो हमारी तरफ नहीं देखते, तब वो सोच के आंसर देते हैं. सो प्लीज डोंट डू दिस. यू आर जस्ट स्टैग्नेटिंग द ग्रोथ ऑफ द ब्रेन. सो प्लीज हेल्प द चाइल्ड थिंक लॉजिकली, रीजन. और आई थिंक बहुत इन डेप्थ में डेंटल क्लीनिंग, डेंटल ओरल हाइजीन के बारे में पता चला. एंड वी ऑर्गेनाइज दिस फॉर वेरियस रीजन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस ईयर वी हैव taken the motto of inclusiveness. So inclusiveness not only of various kind of children who are coming to us from various strata of society with physical ability, whatever, but also we felt that कि हमारे लिए भी बच्चा इम्पॉर्टेंट है, पेरेंट्स के लिए भी बच्चा इम्पॉर्टेंट है, और उसकी डेवलपमेंट तभी बेस्ट हो पाएगी जब हम पार्टनरशिप में काम करेंगे. मैं एक टैंजेंट पे बात करूँ, आप दूसरे टैंजेंट पे बात करें तो वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है. तो वी हैव टू वर्क टुगेदर इन अ पार्टनरशिप. एंड आई एम नॉट अशेम्ड टू सीक हेल्प फ्रॉम एनी कॉर्नर टू फ्रॉम एनीबडी इफ दैट बेनिफिट्स माई चाइल्ड. तो इसलिए वी आर putting our parents with us on this platform, जिसकी जो हमें लगती है हेल्पफुल होगी उसको हम ऑन बोर्ड ले रहे हैं. हम पेरेंट्स को बुला रहे हैं ताकि इकट्ठे हम एक ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे के लिए कर पाए. ओवरऑल डेवलपमेंट स्कूल इज नॉट ओनली फॉर educational curricular development, it is also for the health, well-being, mental, social, everything. And for that, wherever I feel I can get help, I will be availing it. I will be inviting you, and I would request you take the best of it. इसमें से आप अगर enrich होंगे तो it will benefit our children. एक पॉइंट जो मैम ने बहुत बोला और उसमें मैं भी अग्री करती हूँ. मैम ने इंजेक्शन के बारे में बोला. हम बोलते डॉक्टर के पास जाएंगे, इंजेक्शन लगा देंगे. और टीचर्स के लिए क्या होता है, आपका बच्चा हमारे साथ 4-5 घंटे बिताता है आपके बगैर, और आप घर पे बोलते दूध नहीं पी रहे हो, मैम को फ़ोन लगाता हूँ. बात नहीं सुन रहे हो, मैम को फ़ोन लगाता हूँ. क्यों? मैम तो इतनी डरावनी है, उनके नाम से पी लोगे. थिंक फॉर अ मोमेंट, जिसके पास आप 4-5 घंटे उस बच्चे को अकेला छोड़ के जा रहे हो, अगर बच्चा उससे डरेगा तो कैसे चलेगा? वी हैव टू बी फ्रेंड्स. हम बोलते हैं स्कूल में मैम मम्मी है, तो क्या आप हमेशा बच्चे को बोलते हो मम्मी को बोलते होंगे या पापा को बोलते होंगे? मत करिए. लेट द चाइल्ड डेवलप अ रिलेशनशिप विद द टीचर so that the child can confide.
It is okay if the child commits a mistake, क्योंकि हम मिस्टेक से सीखते हैं. And the child should have that much confidence with the teacher कि उसको स्कूल में कहीं भी हो, teacher is good enough. As good as you are there at home, the teacher should be replacing you in school. So उसको डराना नहीं है. मैम हैवान नहीं है, मैम डेविल नहीं है. She is a loving person, and that's why she is in the profession. All right. So on that note, I think, and I would like to congratulate each one of you. Manisha, can we have the data for the plastic bags? Yes. Okay. So we had the SDG week celebration, and I'm so thankful for your cooperation. We had some unforeseen situation of online classes, but still you have participated. Our first and prime focus was talking about the plastic bags. हमने आप सबको बोला था प्लास्टिक बैग एक वीक के लिए अवॉइड करें और उसका एक डेटा रखें, और देखिए what magic you have created in just 1 week and what kind of a difference you have made for the environment. So if we look at the number of poly bags being refused only by foundational stage students only in 1 week, then look at the number of plastic bags. It is 4,058 plastic bags in 1 week that we have refused. And I think that calls for a cheer. And if we could do this in a week's time, अगर हम इसको habit बना लें not to use the plastic bag, then just imagine how much plastic bags we will save for the environment. It is just a habit. Just make it a habit. Plastic bag लेना ही नहीं है. मेरे मार्केट में तो मुझे देखती वो कहते हैं अच्छा प्लास्टिक बैग नहीं देना है, थैला लाई है, तो मैं कहते नहीं लाई हूँ, तो क्या करें, मैं कहते दे दीजिए, खाली करके वापस कर दूँगी, बट आई विल नॉट कीप इट इन माई हाउस. तो जस्ट अ हैबिट एंड देन सी. और ये किताबी बातें नहीं हैं, आप प्लीज समझिए ये किताबी बातें नहीं रह गई हैं. इट इज नाउ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न. वी आर अप्रोचिंग अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न. बच्चे इतनी बीमारी के अफेक्टेड हो रहे हैं, पैंडेमिक हो गया, सीजन चेंज देख लीजिए, बारिश हो रहा है, एंड इट इज एंटिसिपेटेड दिल्ली विल बी सो हॉट, द सेल ऑफ एसीज इज गोइंग टू गो अप. अभी भी हम बिना एसी के रह नहीं सकते. हमारे बच्चे स्कूल में एसी के बगैर नहीं रह सकते हैं. They are asking, parents are asking us to put up AC, but it is going to get worse. And just imagine what kind of a situation we are heading for. And this planet is for our children. We are robbing them of a healthy life. So please, it's a request. Don't think SDG is only book. It is only theory. It is only for somebody else to make the world, this earth survive. We all need to do it and do it right now. Each one of you. आप सोचते हो मैं नहीं करूं तो क्या है, मैं अगर कर भी लूं तो बाकी 10 लोग तो यूज कर रहे, क्या फर्क पड़ता है? ये फर्क पड़ता है सर. अगर आप एक भी पॉली बैग आप मना करते हैं, कलेक्टिवली वी कैन मेक अ डिफरेंस. तो जस्ट imbibe all those habits in your lifestyle and let's make a better world for our children. And thank you so much. This is one of the beginning sessions. We will be inviting you for more thought-provoking workshops in future. Thank you for sparing your time. Thank you for being a partner with us. All the best to you. Have a great weekend. Thank you. Thank you, ma'am. Now I request RHM Ms. Kuru Ganguly and Ms. Deepika Mangari to escort our guests to a conference room. Thank you so much. And thank you all of you parents. Thanks.